file. Have you got the message that your presentation? Yes, it is there. Continue, Suraj. Yes, good afternoon, everyone. This is in between. We are going to present. I am Suraj Yadav from A Division Mechanical Branch, one of your classmates. So I will explain in quick about what we are studying. So we will connect the dots where we are till reach. My screen is visible now perfectly. Yes, Suraj. Screen is very much Yes. visible Yeah. and you are very Yes. much audible. Yes. Yes. I'm starting with the starting of the chapter, so everyone can connect the dots where we are reached. First we have seen the superconductor and from where the theory starts. In one sentence is there who gives this superconductor. Before that, we are only up to conductors. After we put mercury in 4.2 degree, 4.2 Kelvin, then we come to know about superconductors. From where their superconductors came to existence. From there, we have seen that the temperature role is very much crucial in superconductors. Superconductors can be found in a critical temperature if temperature is below minus 270, 230, 260 degree Celsius, then we only superconductors are exist. And we have mathematically proven then how resistivity is directly proportional to temperature. So if the temperature is too low, then resistivity becomes too low, and from Ohm's law, we see that potential and the current, how current will flow maximum. So it is superconductor, so conductivity is very high in that case. So there we see about the temperature role, how the temperature role is there in superconductors. Now the topic comes into, then after that we see that types of superconductor properties. What are the properties of superconductors? From there we first see that magnetic field is the second point. First, uh, persistent current, and one more topic is there we see what is the role of magnetic field now, how magnetic field will affect the superconductor. Will it going to be a friend or like in superconductor? We studied that in the presence of magnetic field, current will induce, or if the flow of current will produce magnetic field. What are the effects of magnetic field in superconductors that we are going to see in this topic? सुपरकंडक्टर में क्या मतलब सुपरकंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस करवाएगा कि क्या इफेक्ट होगा, वो देखेंगे। और उसके लिए किस चीज मतलब क्या कंडीशंस उस पे अप्लाई होगा। When a superconductor is placed in a strong magnetic field, its superconductivity destroys at a particular value of external magnetic field. अगर हम सुपरकंडक्टर को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में रख देते हैं, तो उसकी सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम कंडक्टर को हम रख देते, हम रिलेट करके चलेंगे कंडक्टर को ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि कंडक्टर को जब हम रख रहे थे सुपर मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट इंड्यूस हो रहा था, उस पे में फ्लक्स का लिंकेज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि सुपर कंडक्टिविटी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो होना बंद हो रहा है। करंट अगर फ्लो होना बंद हो रहा है, मतलब रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई करंट सुपर कंडक्टिविटी तब नॉर्मल कंडीशंस में आ जा रहा है अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो मतलब करंट के जस्ट ऑपोजिट में सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहा है। अब उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा टेम्परेचर सुटेबल होगा और मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड की भी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट में हम रहते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी अपना स्टेज नहीं खोएगी, वो नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगी। वो सुपर कंडक्टिविटी के स्टेट में ही रहेगा हमारा सुपर कंडक्टर। तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे, इफ ए सब्सटेंस is in superconducting state below its critical temperature and sufficiently strong magnetic field is applied, the superconductivity state disappears and the substance returns to normal conducting state. अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हम वहां पे देख रहे थे टेम्परेचर में कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जा रहे हैं हम, तो वहां पे सुपर कंडक्टिविटी लॉस हो जा रही है। तो सेम कंडीशन यहाँ देखने को ऐसा आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिट में रहेगी तभी हम सुपर कंडक्टर की स्टेट में रहेंगे, वरना वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा।
The minimum value of magnetic field required to destroy the superconducting state is called the critical magnetic field. मतलब जैसे वहां पर एक टेम्परेचर की लिमिट थी कि उसी लिमिट में हमें सुपरकंडक्टर मिल सकता है, और वैसे ही यहाँ पर भी लिमिट है कि मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाके सुपरकंडक्टर एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं। उसके आगे हम देखेंगे रिलेशन क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर का रिलेशन क्या चलेगा। और क्योंकि हमें सुपर कंडक्टर बनाना है, सुपर कंडक्टर के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए, नहीं तो फिर सुपर कंडक्टर नहीं रहेगा। तो उसके बीच का रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वो तो ऑब्वियस की बात है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड और अगर दोनों मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, तभी तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर दोनों में रिलेशन नहीं होता तो दोनों में कुछ मतलब सुपर कंडक्टर स्टेट में ही रहते हैं। द वेरिएशन ऑफ एस सी विथ टेम्परेचर, हम ग्राफ में देख सकते हैं कि एस सी इक्वल टू एस जीरो वन माइनस टी अपॉन टी सी का स्क्वायर एक फॉर्मूला है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर का बीच में का। हम एच जीरो जो है वो क्रिटिकल फील्ड है, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इतनी होनी चाहिए, उससे मिनिमम ही हमें चाहिए, उससे कम चाहिए तभी जाके सुपर कंडक्टिंग स्टेट कंडक्टर का रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले में टी इक्वल टू टी जीरो रखते हैं तब हमें यहाँ पर हम ग्राफ में देख सकते हैं, अगर टी इक्वल टू टी जीरो है जो एच नोट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, तो 0 केल्विन पर एच क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे जैसे 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 टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के पास आता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। उसके अगर दोनों के बीच में रहे तभी हमें सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिलेगा, नहीं तो हम नॉर्मल स्टेट में रिटर्न चले जाएंगे। The material is said to be in the superconducting state within the curve and is known superconducting in the region outside. Outside में अगर हम गए तो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा और हमारा सुपरकंडक्टर फिर सुपरकंडक्टर नहीं रहेगा। फिर आगे हम चलेंगे, देखेंगे मीसनर इफेक्ट। मीसनर इफेक्ट क्या है? मीसनर इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से काफी इंटर रिलेटेड है। तो हम देख when superconductor is placed in an external magnetic field it expels all magnetic flux lines from it, this is known as Meissner effect। हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि अगर हम सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो रख रहे हैं तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रिपल्स होके बाहर चले जा रहे हैं। जैसे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें कि जैसे कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, और जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, और एक्सपेल हो जा रहे हैं, मतलब कि रिपल्स हो जा रहे हैं। वही मटेरियल जो कंडक्टर हमारे पास पहले था अगर वो नॉर्मल स्टेट में रहता है तो पेनिट्रेट कर रहा था, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा था। अगर उसको सुपर कंडक्टर बनाया जाए, मतलब टेम्परेचर टीसी से कम ले जाया जाए, तब वहां देखा गया कि उतने ही मैग्नेटिक फील्ड पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो वैल्यू थी तभी उसकी लिमिट में ही हमें रहना है, तो वहां पे देखा गया कि वहां पे एक्सपेल करके चला जा रहा था, मतलब रिपल्स कर रहा है। तो ये हमें दिखाता है कि सुपर कंडक्टर हमेशा डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर वैसा नहीं करते तब वो पेनिट्रेट करता, टच करता, मतलब कि दोनों को रिपल नहीं करता, अट्रैक्ट करता, लेकिन हमने देखा कि ये रिपल कर रहा है, तो मतलब वो डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे तभी तो सुपर कंडक्टर बनेगा, और सुपर कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के जैसा सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। इसी को मीसनर इफेक्ट कहते हैं, और मीसनर इफेक्ट को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि हाँ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसा है वो हमें मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, जैसे हमने ओम्स लॉ की मदद से किया था, करंट कैसे फ्लो कर रहा है टेम्परेचर बिलो टीसी में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एक रिलेशन है बी इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन एच, वेर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और मैग्नेटाइजेशन कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से देखें तो अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें या फिर सुपर कंडक्टर की, इसमें पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है बी जीरो होगा, तभी मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा ही नहीं रहा है, तो फ्लक्स है ही नहीं, तो बी जीरो हो गया। अगर हम फॉर्मूले में बी इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला जीरो इक्वल टू म्यू नोट एम प्लस एच बन रहा है। और उसके बाद देखें म्यू नोट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर म्यू नोट जीरो हुआ तो अगर ससेप्टिबिलिटी मतलब मैग्नेट ससेप्टिबिलिटी का भी जीरो,
मैग्नेटिक म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, वो 0 नहीं हो सकता फ्री स्पेस परमिबिलिटी। तो इस वहां से हमें रिलेशन मिला m इक्वल टू -h माइनस m अपॉन h माइनस m -1 आया। और हमने वैसे भी पढ़ा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है m अपॉन h काई m होती है। तो m अपॉन काई m की वैल्यू यहाँ से दोनों इक्वेशन को मैच करे तो -1 आ रही है। इससे ये देखा, और हमें ये भी पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल की काई m की वैल्यू -1 होती है। फेरोमैग्नेटिक में काफी ज्यादा होता है, पैरामैग्नेटिक में 1 से छोटा होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन 1। और डायमैग्नेटिक में -1 होता है। और एक फॉर्मूला और था यहाँ पर, अगर हम लिखने जाएं तो b इक्वल म्यू नॉट 1 प्लस काई m था, और अगर -1 काई m वहां पे रखते हैं तो b 0 हो जाता है वैसे भी फॉर्मूला में। तो वहां से भी हम पता कर सकते हैं डायमैग्नेटिक है कि नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है काई m की वैल्यू -1 हमने मैथमेटिकली निकाला, तो इससे मैथमेटिकली भी प्रूफ हो जाता है कि सुपर कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। hope everyone will get what I am saying. Anything what you want to say, you can say now. Suraj, can you explain again the graph for the effect of magnetic field? Yeah, why not? Effect of, repeat the question. Magnetic field graph. Critical field and temperature. Yes. हम देखने जा रहे हैं एच की वैल्यू और एच। यहाँ पर मेरे पास कुछ लिखने का नहीं है तो मैं बताता आपको। एच सी और इक्वल टू H0 1 माइनस टी अपॉन टी से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि एच सी की वैल्यू हमें कितनी सुपर कंडक्टिव के अंदर रखना है। जैसे यहाँ पे हम टी अपॉन टी से रख रहे हैं, अगर टी की वैल्यू यहाँ नीचे से हम कोई भी वैल्यू ले, टी सी के ऊपर जाएंगे तो सुपर कंडक्टर हट जाएगा। और एच सी हमारे लिमिट है, उसके अंदर ही रहना है, वरना सुपर कंडक्टर रहेगा ही नहीं। तो हमें सुपर कंडक्टर ही तो बनाना है। दो फिर एच सी की दो, अगर हम ऊपर भी जाएंगे एच टी ज्यादा लेकर जाएं या फिर एच की वैल्यू, हाँ तो टी ज्यादा लेकर जाएं, टीसी की वैल्यू यहाँ से लें, टीसी के आगे चले गए तो फिर एच सी तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट इसके अंदर ही रहेगा, क्रिटिकल फील्ड और टेम्परेचर के अंदर। हम लोग टेम्परेचर कम करते जाए और हम लोग ने हमारे टेम्परेचर को माइनस में ले लिया, माइनस केल्विन में, तो फिर ये पूरी 1 माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी। तो फिर अपने आप वो सुपर कंडक्टिविटी लीव कर देगा टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद। क्या बोल रहे हो कि अगर हम टेम्परेचर काफी नीचे लेकर चले जाएं, जैसे -4 केल्विन में ही रहेगा ना। आप अगर माइनस में तो पहले डिग्री सेल्सियस में ले जाओगे आप। पार्थ, माइनस केल्विन इज नॉट। yes Suraj, good one Suraj. Parth, I would like to just clear one thing, that temperature would be in Kelvin, and that tells us that we can achieve hypothetically temperature 0 Kelvin. -1 Kelvin, -2 Kelvin, it is not there in our hand. We cannot even attain that. Understood, Parth? Yes, ma'am. Right. So, Suraj, you have tried good. But Suraj, whenever next time you give any kind of presentation, make sure that you should write the points. It is good that you have taken some of the reference from the book. You have pasted here. You have explained it so nicely. That is a very good thing about your presentation. You have tried to explain the things, whatever is given. But make sure for the next time I am telling, right, Suraj? Make your own points, hai? You read it, you churn it. Ma'am. Yes. Ma'am, I want to say, you stop the recording or not? I'm not getting. You stopped the recording, or it is recorded now also? It is going on. Shall I stop you? I mean recording stop करूं? हाँ, चलो हवे मने clear करो. हाँ, बोलो.